Good morning, student. So in last lecture we were discuss about the rational number. Okay. So what is rational number? तो rational number की हमने definition क्या दी थी? Rational number is a number of the form p by q, where p and q are integer is called rational number. Okay. But q is a denominator r, rational number. Therefore q is non-zero. Q should be a non-zero number. Okay. That means q is natural number. q natural number भी हम ले सकते हैं, कोई भी natural number ले सकते हैं. Now, all natural number are rational number, all integer are rational number, okay, and all whole number. Zero is also rational number. We can express zero as a p by q form. Now, in this lecture, we are discussing about the operation between two rational numbers. The first addition, second subtraction, third multiplication, and fourth division. Okay, these four operations are normal operation between two numbers, any numbers. Okay, so. First, addition and subtraction. Okay. So let's try some example of addition and subtraction of two different rational number. Okay. So in exercise 9.2. Question number 1, find the sum. So, in exercise 9.2, question number 1. First is 5 by 4 plus minus 11 by 4. Okay. 5 by 4 plus inside the bracket minus 11 by 4. So here 5 by 4 and minus 11 by 4 are two different rational number. Okay, but observe here the denominator of both rational number is equal. Okay, so we can common the denominator and whatever the operation between numerator we can do that in numerator. Okay, as well as so 4 is a common. Now 5 plus minus 11 as it is. So 5 plus minus 11, which is 5 minus 11. Okay, 5 minus 11 is minus 6 by 4. Minus 6 by 4 is a rational number, but this is irreducible form of rational number, which is non-standard rational number. Okay. So we can cut 2, common factor is 2, therefore we can cut 2 from both numerator and denominator. So answer will be minus 3 by 2. Now next, let's try example number 4. Sorry, question number 1, इसमें fourth देखो क्या है, minus 3 by minus 11 plus 5 by 9. Fourth is minus 3 by minus 11 plus 5 by 9. So, in first term, minus 3 and minus 4, both are negative. So, we can cut minus from numerator and denominator both. Okay. So, 3 by 11 plus 5 by 9. But here first term and second term, denominator is totally different. 11 and 9 have no common factor. Total, both are co-prime. Okay, co-prime means the number which can have no common factor is called co-primes. Okay, so 11 and 9 both are totally different numbers. So we can first equalize the denominator. How can we equalize the denominator? 11 और 9 का LCM निकालो. LCM और HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे हम LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. तो 11 और 9 का LCM क्या होगा? ऑब्वियसली 99. ओके, सो 11 and 9 in first term 3 multiply by 9, 11 multiply by 9 in the denominator. Okay, in second term 5 multiply by 11, 9 multiply by 11. So 3 9s are 27, 99 as it is,
plus 55, 99. Okay. So in this term, the denominator of both terms are equal. Okay, both rational numbers are equal. So we can common the denominator. So 99 is common. 27 plus 55 as it is. So 27 plus 55 is 7 plus 5 is 2. 99 as it is. 7 plus 5 is 2. 2 plus 5 is 7, or 1 is carry. 82. Okay. So 82 by 99 is our answer. Now next let's try एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1. उसमें टोटली डिफरेंट हो ऐसा करते हैं. लेट्स ट्राई 7. सो 7 इज -2 n 1/3 plus 4n 3/5 तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन कैसे फॉर्म में है? मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है. ओके, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो अ मिक्स फ्रैक्शन. लेकिन ये नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन है. तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लेते हैं. सो -2/3 इज 2 प्लस 1/3 प्लस 4 प्लस 3/5. ओके, इसको डायरेक्ट कर सकते हो 3 × 2 विच इज़ 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. लेकिन आगे माइनस है, माइनस 2 × 3 विच इज़ 6 प्लस 1 इज 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 × 5 विच इज़ 20 प्लस 3 23 डिवाइडेड बाई 5. ओके, सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हो गए. डिनोमिनेटर इज टोटली डिफरेंट, सो इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. सो -7 × 5 डिवाइड बाई 3 × 5 प्लस 23 × 3 5 × 3. ओके, so denominator is 15. In second term also denominator is 15. 7 is the minus 35. 23 is the 69. Okay, so 69 by 15, 30 minus 35 by 15. So in this term both rational number have same denominator. Okay, so denominator is common, 15 is common, minus 35 plus 69. So minus 35 plus 69 is 34 डिवाइडेड बाई 15. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 30 plus 4 divided by 15 which is 2 plus 4 divided by 15. Okay, so answer is 2 and 4 by 50. लेकिन ये भी हमारा आंसर राइट ही है. अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो आप. सो ये तो हमारा एडिशन हो गया. नेक्स्ट हम सबसेक्शन देखते हैं, सबसेक्शन बिटवीन टू रेशनल नंबर. ओके, सो सी इन क्वेश्चन नंबर 2. So in question number 2, let's try second. Okay, so in question number 2, second. So second is 5 by 63 minus 2
inside the bracket minus 6 by 21. Okay. So 5 by 63 as it is. माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे 6 by 21 है, तो 6 और 21 में क्या कॉमन है हमारे पास? 3 है. ओके, तो 3 2 ज़ा 6 and 7 3 ज़ा 21. ओके, 3 3 cancel, तो 2 by 7 is at the second term. So 5 by 63 plus 2 by 7. अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारे पास दो रेशनल नंबर है, दोनों में डिनोमिनेटर में देखो कुछ कॉमन है. ओके, 63 और 7 दोनों में क्या कॉमन है? 7 इज अ फैक्टर ऑफ 63. ओके, तो 63 को एज इट इज रखो. 7 को 63 कैसे बना सकते हैं वो सोचो, उसके बारे में सोचो. ओके, 7 को कैसे 63 बना सकते हैं हम इजीली? 7 को 63 बनाना हो तो क्या करेंगे हम? 7 को किससे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 हो जाएगा हमारा. सो 5 डिवाइडेड बाय 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9. ओके, सो 5 डिवाइडेड बाय 63 प्लस 9 टू ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 63. 63 is common. 5 plus 18. So 63 common. Okay. 5 plus 80 is 23. So this is our answer. Now next let's try fifth number. Minus 2 by. Sorry. Fifth number is minus 2 and 1 by 9. Minus 6. Okay. So same as in first rational number is in mixed fraction form. Okay. So first of all minus 2 and 1 by 9 minus 6. So minus 2 plus 1 by 9. इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 इज 19 डिवाइडेड बाय 9. ओके, माइनस 6. नाउ माइनस 19 बाय 9 माइनस 6. अब यहाँ पे देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे. तो माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9. ओके, so 9 is common divisor, sorry common denominator, or minus 19 minus 9 6 ja 54. Okay, so 54 plus 19, 9 is our common denominator. 54 plus 19 is 73. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो माइनस 73. तो आर आंसर इज माइनस 73 बाई 9. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 9 का डिवाइजर ढूंढो 73 के आसपास. जितने भी नज़दीक हो ऐसा 9 का ऐसा मल्टीपल ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने से 73 के आसपास नज़दीक आ सके. ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो एटलीस्ट पास में आ सके? तो याद है किसी को कोई ऐसा नंबर? 9 8 ज़ा 72. ओके, सो माइनस 72 माइनस 1 बाई 9 72 बाई 9. ओके, so minus 8 minus 1 by 9. So answer is minus 8 and 1 by 9. This is our answer in the mixed fraction form. Okay, next we start करते a product and division of two rational numbers. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ
2 rational number product and division of 2 rational number. Okay, so in exercise 9.2, let's try question number 3. Okay, so second देखते हैं क्या. Second is 3/10 multiply by -9. So in second, अब यहाँ पे देखो, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिंगल सिंपल रूल है हमारे पास. अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना है. ओके, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर and denominator is multiplied by denominator. So in this number -9 is a numerator. Okay, because is denominator of -9 is 1. -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -9 divided by 1. Okay, so 3 multiplied by -9 in numerator, 3 multiplied by -9, denominator as it is. So 3 multiplied by -9 is -27 divided by 10. So -27 divided by 10 is our answer. Let's try fourth example. 3/7 3/7 multiplied by -2/5. So 3/7 multiplied by -2/5. So in numerator 3 multiplied by -2 and 7 multiplied by 5. Okay, 3 multiplied by -2 is -6, 7 multiplied by 5 is 35. Okay, so -6/35 is our answer. Now क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें क्या है, डिवीजन है. दो नंबर का डिवीजन करना है. 2 रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में भी हो सकता है कि इंटीजर के साथ भी कर सकते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन, उसमें फर्स्ट -4 डिवाइडेड बाई 2/3. सो फर्स्ट इज -4 डिवाइडेड बाई 2/3. तो डिवीजन सिंपल है लेकिन ट्रिकी है. देखो कैसे, क्योंकि 2 चीज़ का डिवीजन है, p बाई क्यू फॉर्म में है हमारे पास, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे. अगर a बाई बी सपोज को है मल्टीप्लाई बाई p बाई क्यू है. ओके, तो इसको सिंपल a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई क्यू करके कुछ कर सकते हैं, सिंपल है. लेकिन डिवीजन में क्या होता है, अगर बीच में डिवीजन है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो उल्टा हो जाएगा. a बाई बी मल्टीप्लिकेशन साइन लिखोगे क्या होगा, q मल्टीप्लाई बाई p. समझ में आया. उसका मीनिंग क्या हो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर. इसका डिनोमिनेटर ये नंबर है पूरा, इसका डिनोमिनेटर ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर. ओके, तो ये एग्जांपल में देखते हैं. -4 है एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई 3/2 लिख सकते हैं इसको. नाउ अगर अब बीच में साइन हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज -4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2. -4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज -12 डिवाइड बाई 2 -6. ओके, लेट्स ट्राई 7th एग्जाम्पल. 7th is 3/13 divided by -4/65. 3/13 divided by
-4/65. Okay. So first of all 3/13 as it is, because this is our numerator, multiply by 65 divided by -4. Okay. सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 65. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव साइन है, हम डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव साइन रखते नहीं है, इसलिए क्या कहाँ पे ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ. तो आगे न्यूमरेटर -3 के साथ ले लो, या आगे पूरे नंबर के साथ माइनस में ले लो आगे. ओके, ये पूरा नंबर होल क्वांटिटी माइनस कर देता है. -13 मल्टीप्लाई बाई 4. अब यहाँ पे देखो 13 और 65 में कुछ कॉमन है, कुछ कट कर सकते हैं, कुछ कट. देखो ट्राई करो, 13 के टेबल बोलना स्टार्ट करो तो उसमें 65 आता है या नहीं, वो सोचो उसके बारे में. ओके, 13 5 ज़ा 65, तो 65 इज 13 5 ज़ा 65. ओके, सो 13 कैंसल, रिमेनिंग इज 3 and 5 and denominator is 4. So -3 multiplied by 5 is 15 divided by 4. So 15 divided by 4 is our answer. Okay. So between two rational, addition, subtraction, multiplication and division. Okay, easy है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा आपका. लेकिन आपको क्या करना है, डिवीज़न को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा डिवीज़न सॉल्व करना. ओके, सो इन होमवर्क solve questions 1, 2, 3, 4 of exercise 9.2. ओके, 9.2 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए, उसके अलावा रिमेनिंग है वो सारे आपको कहाँ पे करने हैं, 9.2 इन योर मैथ्स नॉर्मल. ओके, दिस इज योर होमवर्क. सो थैंक यू और हैव अ गुड डे. बाय.